round of applause to our Honorable Governor of Karnataka and the Speaker of the Karnataka Legislative Assembly. Coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success. Mangalore PhysioCon 2023 is an international physiotherapy conference, and the platform of this format is intellectual exchange, a dream that was realized in a just days. Mangalore PhysioCon 2023. Coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success. Mangalore PhysioCon 2023 is an international physiotherapy conference, and the platform of this format is intellectual exchange, a dream that was realized in a just days. Mangalore PhysioCon 2023. आज के वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के अवसर पर हमारे बीच में एक महान शख्सियत श्री तावर चंद गहलोत जी, जो हमारे राज्य कर्नाटक के गवर्नर हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश से हुई है। उन्हें ऑनरी डिग्री डी लाइट डिग्री अवार्डेड 2016 बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस अम्बेडकर नगर से मिली है मध्य प्रदेश में। सर का पॉलिटिकल कैरियर बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। 1962 से 1977 तक सर भारतीय जनसंघ के मेंबर रह चुके हैं। 1977 और 1980 में सर जनता पार्टी मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। 2006 एंड 2014 से सर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। 1999 और 2004 एंड 2004 टू 2009 सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा भी रह चुके हैं। 1999 में विप बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी इन लोकसभा भी रह चुके हैं सर। 2012 और 7 जुलाई 2021 से सर मेंबर राज्यसभा फ्रॉम मध्य प्रदेश 2 टर्म रह चुके हैं और अभी चल रहे हैं उनका टर्म। और उसके बाद सिंस 11 जुलाई 2021 से सर हमारे कर्नाटका के द ऑनरेबल गवर्नर हैं। हम फिजियो आज बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री तावर चंद गहलोत जी। सर हम सब फिजियो आपका हमारी फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस में हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं सर। To preside over the International Physiotherapy Conference, we have with us today Shri U.T. Kadar Farid ji, Speaker, Karnataka Legislative Assembly. On the behalf of Mangalore PhysioCon, we welcome you, sir. I extend a warm welcome to Dr. Sharan Prakash R. Patil, sir, Minister for Medical Education, Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood, Government of Karnataka. On the behalf of Mangalore PhysioCon, we welcome you, sir. Thank you, sir. I extend a warm welcome to our guest of honor, Dr. Sanjeev K. Jha, President, the Indian Association of Physiotherapists. On the behalf of Mangalore PhysioCon, we welcome you, sir. Thank you, sir. I extend a warm welcome to our guest of honor, Dr. Ali Irani, Chairperson, International Affairs, the Indian Association of Physiotherapists and former physiotherapist Indian cricket team. On the behalf of Mangalore PhysioCon, we welcome you, sir. Excellency Achiever Awardee, Shrimati D.A. Kalpaja, Chairperson, Vaidevi Institute of Health Sciences and Research Center, Bangalore.
On the behalf of Mangalore PhysioCon, we welcome you, ma'am. The lamp of knowledge to dispel the darkness of ignorance. We come together to celebrate World Physiotherapist Day. May I now take the honor of requesting the chief guest to address the gathering, please. मैं आप सबको हृदय से सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है और इस अवसर पर मैंगलोर फिजियोकॉन 2023 इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसके लिए आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस साल विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की थीम आर्थराइट्स, जो रूमेटाइड आर्थराइट्स और स्पोडिली आर्थराइट्स से जुड़ी सभी जरूर जानकारियों पर फोकस होगा। मुझे खुशी है कि मेडिकल फील्ड के महत्वपूर्ण प्रोफेशनल्स मैंगलोर में एक साथ एकत्रित हुए हैं और आप सब अगले 2 दिन तक कनेक्ट टू अनलॉक पर पोटेंशियल ऑफ फिजियोथेरेपी थीम पर विचार विमर्श करके कुछ अच्छे उपयोगी निष्कर्ष निकालेंगे। फिजियोथेरेपी उपचार पद्धति का एक पुराना रूप है जो किसी प्रकार की चोट, बीमारी या दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों में गतिशीलता, शारीरिक शक्ति और कामकाज को फिर से स्थापित करने में सफलता प्रदान करता है और सशक्तिकरण को पुनर्जीवित करता है। प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक सुश्रुत की उचित स्वास्थ्य तकनीक और शारीरिक व्यायाम आज भी बहुत लोकप्रिय है। एक फिजियोथेरेपिस्ट न केवल शारीरिक चोट का इलाज करता है बल्कि रोगी को मनोवैज्ञानिक चुनौती से भी निपटने का साहस देता है। मेरा खुद का इसमें लंबा अनुभव है। मैं 7 साल तक केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का दायित्व निभाता रहा हूं और इस मंत्रालय में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भी आता है। मैंने इस कार्यकाल में दिव्यांगों को सशक्तिकरण की दृष्टि से फिजियोथेरेपिस्ट को अत्यधिक महत्व देने का प्रयास किया है। मेरा कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है कि हर चिकित्सालय में
फिजियोथेरेपिस्ट की एक विशेष विंग और वो भी सुदृढ़ तरीके से स्थापित करने का प्रयास करें। फिजियोथेरेपी से कुछ मामलों में चिकित्सीय प्रणाली से सुधार नहीं होने जैसे अनुभव भी मैंने प्राप्त किए हैं। मेरे स्वयं के भतीजे को अस्पताल में, इंदौर हॉस्पिटल में 2-3 जगह दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी दोनों हिप बदलना पड़ेगी और दोनों नी बदलना पड़ेंगे, और ये बदलने के बाद भी 7-8 साल से ज़्यादा की गारंटी नहीं है, जवाबदारी नहीं है। इस बीच हमको पता लगा कि उत्तर प्रदेश में एक उन्नाव स्थान है, वहाँ एक अस्पताल है जो फिजियोथेरेपी पद्धति से चिकित्सा देते हैं। मैंने मेरे भतीजे को वहाँ भिजवाया, 8-8 दिन 2 बार वहाँ गया और इलाज करवाया। आज वो एकदम स्वस्थ है, और जिन डॉक्टरों ने ये कहा था कि इनकी दोनों नी और हिप बदलना पड़ेगी, उनको ही जाकर के दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, अरे ये तो एकदम ठीक हो गया, आपने ऐसा क्या किया। तो वो ये उदाहरण मैंने स्वयं ने अनुभव किया है, और मुझे भी कुछ परेशानी थी तो इंदौर में एक पिंकी टोपी वाला है, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, फॉरेन से शिक्षा प्राप्त करके आई है। उनके सहयोग से मुझे भी बहुत लाभ हुआ है। और मैं जहाँ निवास करता हूँ उज्जैन जिले में नागदा, वहाँ एक स्नेह नाम की संस्था है जो फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती है, और बहुत सारे दिव्यांगता प्राप्त लोगों को या पीड़ित परिवार के लोगों को चिकित्सा सुविधा दे करके ठीक करने का काम कर रही है। ये मैंने खुद ने आंखों से देखा है। वर्तमान में फिजियोथेरेपी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री जी ने भी फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया है, जो शारीरिक सुदृढ़ता प्रदान करने में उपयोगी है। आज के समय में पैरामेडिकल फील्ड काफ़ी बढ़ रहा है। यही वजह है कि फिजियोथेरेपी में कैरियर की संभावनाएं बढ़ी है। ऑर्थोपेडिक क्लिनिकों, अस्पतालों, पुनर्वास केंद्रों, फिटनेस केंद्रों, खेल सुविधाओं और रक्षा प्रतिष्ठानों में योग्य फिजियोथेरेपिस्ट की मांग भी निरंतर बढ़ रही है। विश्व स्तर पर बढ़ते गैर संचारी विकारों के इलाज के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक समग्र स्वास्थ्य प्रणाली में सफलता हासिल करने के तरीकों की पहचान के लिए फिजियोथेरेपी से फिजियोपैथी की ओर चलना आज की आवश्यकता है। योग और व्यायाम का भौतिक चिकित्सा से गहरा संबंध है। मैं महसूस करता हूं कि फिजियोथेरेपी के साथ योग और व्यायाम का उपयोग किए जाए तो शरीर की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसलिए आप फिजियोथेरेपी के साथ साथ योग को भी प्राथमिकता दें, ऐसा मेरा अनुरोध है। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में विभिन्न विशिष्टताओं के विशेषज्ञ सार्थक चर्चा करेंगे एवं अपने ज्ञान और अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। आपने किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति की सेवा करने और उनके शारीरिक सशक्तिकरण का जो मार्ग चुना है और समाज को स्वस्थ एवं निरोगी रखने का जो आपका संकल्प है, यह प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं आप सबकी प्रशंसा करता हूं
आपके कामों की सराहना करता हूँ। आपके अथक प्रयासों और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। For his time and support, may I request Sri Sharan Prakash Patil, Sir, Minister for Medical Education, Government of Karnataka, to kindly accept our felicitation of gratitude by the Honorable Governor of Karnataka on behalf of Mangalore PhysioCon 2023. May I request our beloved Sri U.T. Khadar, Sir, Honorable Speaker of Karnataka Legislative Assembly, to accept our felicitation of gratitude from the Honorable Governor of Karnataka on behalf of Mangalore PhysioCon. On behalf of Mangalore PhysioCon, I now request our Governor to please honor Dr. Ali Irani, Sir, with a memento. And also I request Governor, Sir, to please honor Dr. Sanjeev Jha, IAP President.